Hello everyone. Today we will discuss demand concept. We already discussed about the demand function and schedule and curve of the demand function. Today we will discuss law of demand. Law of demand means it is a inverse relationship between price and quantity demand. When price fall, quantity demand rise. When price rise, quantity demand fall. In the figures, when price 1, quantity demand 40. When price 2, quantity demand 40 to 30. Means whenever price increase, quantity demand fall. And when price rise, quantity demand fall. And when price fall, 4 to 3, 3 to 2, 2 to 1. Quantity demand rise 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. Some of the basics assumptions will be assumed here. Law of demand will be implemented only when income of consumer remain same. It's mean consumer की income में कोई भी changing नहीं होनी चाहिए, ना तो rise होनी चाहिए, ना ही क्या fall होनी चाहिए. Price और related goods means substitute goods and complementary goods के price में कोई changing नहीं आनी चाहिए. तब law of demand क्या है वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं. अदर इन एजम्पन्स को हम जूम कर लें तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के रिलेशन को हम डायग्राम में एक्सप्लेन कर सकते हैं. डायग्राम क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है. मींस व्हेन एवर प्राइस फॉल क्वांटिटी डिमांड राइज. स्लोप ऑफ डिमांड का मींस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू. हेयर इज डायग्राम ऑफ नेगेटिव स्लोप. वी नो अंडरस्टैंड इन माय प्रीवियस वीडियो कि वाई डिमांड का इज अ नेगेटिव स्लोप. नाउ डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड. चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को बेसिक से समझते हैं. चेंज इन क्वांटिटी डिमांड मीन्स इट इज ए रिलेटेड टू मूवमेंट. इट इज रिलेटेड टू मूवमेंट मीन ऑल थिंग बीइंग इक्वल. ऑल थिंग बीइंग इक्वल मीन्स वी विल स्टडी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, अदर फैक्टर रिमेन सेम. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. It is related to the movements. There are two types, extension in demand and contraction in demand. Contraction in demand means when price of goods X fall, quantity demand of goods X rise. Here in schedule, when price 10, quantity demand 100. When price fall 10 to 5, quantity demand rise 100 to 200. Then curve move A to B. Already we study that curve is a negative slope, demand curve. Initial point is A, then price fall 10 to 5, quantity demand rise 100 to 200 on point B. Means A to B downward movements is known as a extension in a demand. As well as contraction in demand. Contraction in demand means when price rise, quantity demand fall. Price is 10, quantity demand is 100. When price 10 to 20, quantity demand fall 100 to 50. Here upward movement. Initial movement is A, then price rise, quantity demand fall, movement of upward A to B. Means whenever a downward movement, it's mean extension in demand. When upward movement, when contraction in a demand. Next topic, change in demand. There are two type of change in demand, increase in demand and decrease in demand. अब change in demand means it is related to shift. Related to shift means price remain same but other factors will be changed. Other factor means income of the consumer change हो जाती है, टेस्ट चेंज हो जाते हैं, सब्सिट्यूट और रिलेटिव गुड्स के प्राइस क्या चेंज हो जाते हैं. इसी के बेस पर जब हम स्टडी करते हैं चेंज इन डिमांड को तो डिमांड करो या तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा या फिर क्या है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा. यहाँ देखते हैं हम इंक्रीज इन डिमांड. इंक्रीज इन डिमांड मीन्स क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज ड्यू टू चेंज अदर फैक्टर लाइक इंक्रीज इनकम ऑफ कंज्यूमर, इंक्रीज द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स बट प्राइस रिमेन सेम. इसका मतलब क्या हुआ कि कंज्यूमर की इनकम के राइज होने से एंड रिलेटिव गुड्स के प्राइस के चेंज होने मीन्स सब्सिट्यूट गुड्स के प्राइस इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड क्या है 100 से 200 हो गए बट प्राइस रिमेन सेम. यहाँ पर प्राइस क्या 10 है, क्वांटिटी डिमांड 100 है,
व्हेन प्राइस 10 क्वांटिटी डिमांड राइज 100 to 200। तो डायग्राम क्या हुआ, राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। डी इज ए इनिशियल डिमांड कर्व, डी1 इज ए न्यू डिमांड कर्व। अब व्हेन राइट वर्ड शिफ्ट गुड्स विल बी राइज और एट सेम प्राइस। इसके जो अजम्पशंस हैं, रीजंस हैं क्यों ऐसा होता है, क्यों होता है, क्योंकि इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज। जब इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी, यानी पीछे पड़ा हुआ है मोर इनकम मोर डिमांड, लेस इनकम लेस डिमांड। इंक्रीज द प्राइस ऑफ सब्सिडी गुड्स, जो गुड्स हैं टी एंड कॉफ़ी, अगर कॉफ़ी के प्राइस बढ़ेंगे तो टी की डिमांड क्या है, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। उसी तरह क्या है, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर कार के प्राइस कम होंगे तो डिमांड पेट्रोल की राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अगर टेस्ट हमारे फेवर होंगे तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अगर कल को प्राइस बढ़ने वाले हैं, नियर फ्यूचर के अंदर प्राइस राइज होने वाले हैं, तो टुडे की डिमांड क्या है, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड ए इंक्रीज इन डिमांड। नेक्स्ट टॉपिक इज डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन वन मीन्स क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज ड्यू टू change in other factor like decrease the income of consumer, decrease the price of substitute goods, but price remain same। अब यहाँ पर देखो प्राइस सेम है 10-10, काउंटर डिमांड क्या है 100 to 50 हो गया। वो क्या होगा, राइट वर्ड शिफ्ट, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया। पहले क्या हुआ था, राइट वर्ड शिफ्ट हुआ था, अब डिक्रीज इन डिमांड में वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया। इनिशियल डिमांड कर्व है डी, फिर उसका D2 क्या है, प्रेजेंट क्या है, डिमांड कर्व है, जो कि कंज्यूमर की इनकम कम होने के कारण क्या है, वो डाउनवर्ड स्लोप हो गया। सब्सिडी प्राइस क्या है, जैसे कि कॉफ़ी का प्राइस क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं, तो टी के प्राइस की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कार के प्राइस बढ़ गए हैं तो पेट्रोल की डिमांड क्या है, डाउनवर्ड क्या है, शिफ्ट हो जाएगी। टेस्ट क्या हमारे फेवर में नहीं है, जिस कारण से क्या डिमांड कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया। Thank you. Have a nice day. If you have any problem, you can discuss directly to me.